نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید حامد حسین شتاری، کارگزار صدر آل انڈیا مجلس انقلاب ملت، ناظرین کرام اور حیدرآباد کے معزز افراد و دانشوروں کی خدمت میں پہلے سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت اہم ترین مسئلے پر آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ حیدرآباد ایک ایسا تاریخی شہر ہے اور جو ہے ہندوستان میں اس کا تعلیمی معیار، اس کے اخلاقیات، اس کے آداب، اس کی محبت، اس کا خلوص اور اس کا کارنامہ جو ہے انتہائی روشن انداز میں عوام کے سامنے موجود ہے۔ 1956 میں وقف بورڈ کا قیام عمل میں آیا اور اس کی جو پہلے معتمد کی حیثیت سے جس کا تقرر ہوا، جناب مصطفیٰ علی خان صاحب کلکٹر اورنگ آباد تھے، انتہائی دیانتدار آفیسر تھے۔ انہوں نے بہت ہی دلچسپی کے ساتھ وہ کام انجام دیا اور 1956 میں آندھرا کا قیام عمل میں آیا اور آندھرا اور تلنگانہ ایک ہی ساتھ کام کرنے لگے، لیکن تلنگانہ میں بہت زیادہ جائیدادیں تھیں جو وقف جائیدادیں، اور اس پر بہت سے قبضے بھی ہو چکے تھے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس زمانے کے جو آفیسر تھے وہ مسلسل کوشش کرتے رہے اور حفاظت کرتے رہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تلنگانہ ہونے سے قبل 1914 میں ہم لوگوں نے ایک جو ہے کاروان وقف کے نام سے ایک بہت بڑا پروگرام بنایا۔ پورے آندھرا پردیش میں ہم لوگ نمائندگی کرتے رہے اور کلکٹرز اور ڈسٹرکٹ وائز، اور وہاں پر جو ہے پورا ریکارڈ ہم کلیکٹ کیے اور جو ہے لاکھوں روپئے گورنمنٹ جو زمینات لے لی تھی اس کا کمپنسیشن باقی ہے، وقف بورڈ جو ہے پرسیو کر کے وہ رقومات تک حاصل نہیں کرا، جس میں عادل آباد، کریم نگر اور نظام آباد میں کئی لاکھ روپے کی جائیدادیں جو ہے وہاں پر موجود ہیں اور وہ رقومات ہیں لیکن اٹھاتے نہیں۔ اس کے بعد 1917 میں ہم لوگ اسٹیٹ کانفرنس کرے، وقف اسٹیٹ کانفرنس، جس میں کئی IAS آفیسرز، کئی IPS آفیسرز جو ہے خطاب کیے۔ اس کے بعد ہم 11 جو ہے قراردادیں پیش کرے اور جو ہے موجودہ وقف بورڈ کے چیئرمین جناب سلیم صاحب سے بالمشافہ مل کر ہم لوگ جو ہے یہ درخواست بھی کرے کہ آپ جو ہے ایک جوائنٹ میٹنگ کیجئے اور اس میں جو ان مسائل پہ گفتگو ہوں گی تاکہ وقف کی جائیداد کا تحفظ ہو سکے۔ سلیم صاحب نے وعدہ کیا، 4 مرتبہ وہ وعدہ کرتے رہے۔ سلیم صاحب میری نظر میں بااعتماد آدمی نہیں ہے اور نہ ان کو وقف سے کوئی دلچسپی ہے۔ وہ جس انداز کا اظہار کرتے ہیں ان کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، اور وہ صرف سیاسی لوگوں کی نظر کرم سے وقف بورڈ کے چیئرمین رہنا چاہتے ہیں۔ اور جو ہے وقف بورڈ کا چیئرمین کیسا ہو، IAS آفیسر ہو اور جو ہے IPS آفیسر ہو، IR ہو جس کے پاس ڈگری ہو اور جو ہے PhD ہو، ویسے آدمی کو چیئرمین بنایا جاتا ہے۔ KCR صاحب کی عجیب و غریب جو ہے فکر ہے کہ وقف کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے نااہل آدمی کو چیئرمین بنا کے رکھا، ہمیں اس پر افسوس ہے۔ اور میں تلنگانہ تحریک میں 11 سال تک کام کرتے رہا ہوں اور میں ون آف دی فریڈم فائٹر ہوں تلنگانہ کا، اور KCR صاحب اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ہم ان سے یہی مطالبہ کرتے رہے، آپ ہم پہ کوئی عنایت مت کیجیے، جو وقف جائیدادیں جو ہماری ہیں اس کو بچا لیجیے، ہم گورنمنٹ سے ایک پیسے کے خواہاں نہیں ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے
कि आपको जुडिशियल पावर देना होगा। केसीआर साहब ने वादा किया कि मैं 3 महीने और 6 महीने के अंदर तेलंगाना बनते आपको जुडिशियल पावर दूंगा। वो बात उनकी आई गई हो गई। और उसके बाद हमारे जो नुमाइंदे आए हैं, जो वोट के अराकीन है, उनको भी कोई फिक्र नहीं है कि वो जुडिशियल पावर का मुतालबा नहीं करते। इसलिए नहीं करते, अगर जुडिशियल पावर का मुतालबा करें तो दयानतदारी के साथ वक्फ जायदाद को बचाना पड़ेगा। लेकिन ये जो है चोरों के हमदर्द हैं और वक्फ जायदाद को जो सबूटाज करते हैं उनके बहीखा हैं और उनके सरदार हैं, ये वक्फ बोर्ड को नहीं कर सकते। तो आप हमारा मुतालबा यही है कि हम जो है कल ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत की जानिब से वक्फ बोर्ड के दफ्तर पे हमने धरना दिया और वहाँ पर एक 8 पॉइंट अहम तरीन मसाइल पेश करे। हमारा मसला ये था कि मुस्लिम खबरस्तानों के लिए जगह फराहम की जाए, कम से कम 40 से 50 एकड़ ज़मीन। लेकिन जो है वो बात आई गई हो गई। और उसके बाद जो है हम ये बोले कि तेलंगाना में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो वक्फ जायदादें हैं आप उसको खबरस्तान के लिए महफूज कीजिए। उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। और उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि जो मुतवल्ली जो सज्जादेगान है, खबरस्तान की 2 कैटेगरीज है, एक प्राइवेट खबरस्तान है, एक पब्लिक खबरस्तान है। प्राइवेट खबरस्तान उन लोगों की है कि जो खानकाहों के तहत है, जिनके बुजुर्गों ने उसको क़याम अमल में लाया और उनके फैमिली मेंबर्स और मुरीदैन के लिए वो तदफीन की इजाज़त दी जाती है, वो प्राइवेट खबरस्तान है। पब्लिक खबरस्तान आम लोगों के लिए लोग बनाए गए हैं और जिसमें मौक़ाफ़ में जिसका रिकॉर्ड है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे इतने अराकीन, और हमको बोल के खुशी भी होती है, 25 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन की अक्सरियत है। वो 25 साल में 25 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट से उन्होंने नहीं ले सके। लेकिन जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक नॉमिनेटेड एमएलसी रिप्रेजेंटेशन करता है तो गवर्नमेंट 62 एकड़ ज़मीन 62 एकड़ क्रिश्चियनों के लिए देती है। इससे बढ़ के हमारे लिए और शर्म का क्या मुकाम हो सकता है। पहाड़ी शरीफ में 10 एकड़ ज़मीन का बार बार ऐलान किया जा रहा है, जबकि 700 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट ले ली और उसके बाद जो है 50 एकड़ अगर ज़मीन वापिस की तो हम जो वो खुशियां मना रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं। हमको ये भी नहीं मालूम 700 एकड़ बढ़ के है या 50 एकड़ बढ़ के। और ना आप वो ज़मीन लिए, ना आज तक उस पर कोई बाउंड्री वॉल आपने बनाया, ना कोई आपने नक्शा बनाया, ना उसमें कोई प्रोग्राम दिए। इतने बड़े शहर में जहाँ 20 लाख से बढ़ के मुसलमान रहते हैं, अगर इंतकाल हो जाए तो मुस्लिम खबरस्तानों में तदफीन की इजाज़त नहीं दी जाती। इसलिए ये जितने खबरस्तानों के निगरानकार है और इनका हमारे सियासी जमात के कायदीन से बेहतरीन ताल्लुकात है और आपकी इत्तला के बाद से उनसे डोनेशन भी लिया जाता है। और वो डोनेशन जो देने वाले हैं वो डोनेशन किस बुनियाद पे देंगे? आप हमको इसी बुनियाद पे दीजिए कि हम खबर के लिए 1 लाख रुपए ले लेते हैं, 50,000 ले लेते हैं, 2 लाख ले लेते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे लिए जो बहुत अहम तरीन पहलू है, हम ये मुतालबा कर रहे हैं। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जो है ये 25 साल में जो वक्फ जायदादें 4 मीनार से नए पुल से 4 मीनार तक जो डेवलप की गई, जो है नबी खाना मौलवी अकबर अलाउद्दीन वक्फ, जहाँ पर जायदादें डेवलप की गई और 90% नॉन मुस्लिम किराएदारों को, और वो भी उन लोगों को दिया गया है जो बीजेपी से ताल्लुक़ खातिर रखते हैं। और यही नुमाइंदे जो आज मौजूद है, सियासी नुमाइंदे, और इनकी ही सरपरस्ती में, इनकी रजामंदी में जो अलाटमेंट हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, इंडोमेंट डिपार्टमेंट में एक मलकी भी मुसलमानों को किराए पे नहीं मिलती। एक मलकी तो बड़ी बात है, 1 फीट भी जायदाद आपको मुसलमानों को इंडोमेंट वाले नहीं देते। लेकिन हमारी वसीउ नजरी का ये आलम है कि हम मलकियों की मलकियां उनको दे रहे हैं। बशीर बाग में सुप्रीम कोर्ट में बावजूद जीत के
फिर आप उन्हीं किराएदारों को जो है किराएदार बना देते हैं। आखिर क्यों बनाते? नाना मियाँ की जो मस्जिद की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, जो वक्फ प्रॉपर्टी है, और जो है उसको आपने हासिल नहीं किया। अब जो डेवलपमेंट करने के लिए आप जो कह रहे हैं कि जो है वक्फ बोर्ड के मुत्तसिल जो है जो जायदाद है हम डेवलप करना चाहते हैं, करीजिए। खैरताबाद की जायदाद करीजिए, बेगमपेट की भी जायदाद कीजिए, लेकिन अखलाकियात को पेश नजर कीजिए। आप टेंडर कॉल कीजिए, जो लोग बढ़ के रकम देते हैं आप उन्हें अलॉट कीजिए। आप नॉमिनेशन का तरीक़ेकार ख़त्म कीजिए। इसलिए इससे आपकी नीयतों का अंदाज़ा होता है और आप लाखों रुपए वो नॉमिनेटेड लोगों से हासिल कर लेना चाहते हैं। औक़ाफ़ में के ताल्लुक़ से ये मशहूर है कि औक़ाफ़ में दयानतदार लोग नहीं है। ये मशहूर है कि औक़ाफ़ में करप्शन ज़्यादा है, और जो है संतरी से लेके मंत्री तक औक़ाफ़ के लोग जो है करप्शन में मुलव्विस है। और हमको अफसोस है कि ये लोग मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास ईमान का कोई तस्वुर नहीं है। और हमारा मुतालबा ये है कि आप जो है जो बड़ी बड़ी जायदादें हैं, जैसा अंजुमन दस्ती पारचा बाफी हरमैन शरीफैन की इस वक्त जो है 100 करोड़ से बढ़ के की प्रॉपर्टी है, जो नामपल्ली में वाक़ है, हिमायत नगर में वाक़ है, नारायणगुड़े में वाक़ है। अगर आप सही तरीके का किराया करें, जब मदीना पब्लिक स्कूल चलाया जाता है, जूनियर कॉलेज चलाया जाता है, जहाँ पर हाल के हज़ारों रुपए किराए लिए जाते हैं, लेकिन वक्फ जायदाद से आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता, ना यतीमों को फ़ायदा होता है, ना मुस्तहिक़ीन को फ़ायदा होता है, और वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कोई किराया बढ़ाया नहीं जाता, और जब वो अदालत को चले जाते हैं तो हकीकी एतबार से आप पैरवी भी नहीं करते, रिकॉर्ड भी दाखिल नहीं करते, और सियासी असरात से जो है आपका जो है जो ताल्लुक़ खातिर है आप उसको बरकरार रखते हैं। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी जायदाद 865 एकड़ हमारे जनाब अकबर निज़ामुद्दीन साहब सज्जादे शाह खामोश ने उसे फरोख्त कर दिया, और जिसके डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अकबाल साहब के ताल्लुक से हम दुआ करते हैं कि बड़े नेक ऑफिसर थे, उन्होंने इन लोगों को कोर्ट में दाखिल करने के लिए जो इनके खिलाफ कार्रवाई की, और इनकी कार्रवाई जो है जो जब दाखिल की गई और इकबाल साहब जब चले गए तो कार्रवाई से बजाय ताउन अमल करने के उसे पेंडिंग किया गया। अदालत में जो है वक्फ रिकॉर्ड नहीं दाखिल किया जाता, अदालत में एविडेंस पेश नहीं किया जाता, अदालत में जो है हमारा वकील जो है परस्यू नहीं करता। तो आप अंदाजा लगाइए ये क्या मुकाम हो गया है। अब प्रोटेस्ट पिटीशन जो है क्रिमिनल कोर्ट में चल रही है। चीफ जज वहां का कह रहा है कि मैं जो है 1 महीने में आप लोगों का तस्वीर कर देता हूँ, वक्फ बोर्ड से कोई नुमाइंदगी नहीं हो रही है। वो रिकॉर्ड तो आ जाने दीजिए, वक्फ बोर्ड रिकॉर्ड नहीं देता, और जो कंप्लेंट होल्डर उन्हें बयान नहीं करता। आप गौर कीजिए ये क्या मुकाम है। और जो है हमारे कायदीन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे कायदीन जो मेंबर ऑफ असेंबली है, लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं है। वो जो है ये चाहते हैं कि किसी भी तरह वक्फ जायदाद खत्म हो जाए और मुसलमान बेआबरू हो जाए। और जो है इस लॉकडाउन में मुसलमानों को अंदाजा हो गया कि तुम्हारे हमदर्द कौन है और तुम्हारे बेदर्द कौन है, किन्होंने तुम्हारी मदद की। करोड़ों रुपए जिनके पास मुसलमानों की जायदाद के है, वो इस वक्त मुसीबत के ज़माने में मुसलमानों की उन्होंने कोई खातिर खा मदद नहीं की, और लोगों ने उन्हें दिया। उनके अपने जो कंट्रैक्ट है उन लोगों ने तमाम लाखों रुपए के अनाज उन्हें सप्लाई किए। और जो है जैसा मशहूर मखुला है नाना की दुकान पे दादा के फातिहा, इसी तरह उन्होंने करके जो है आज कौम के सामने पेश किया। वक्फ जायदाद को अगर आप संभालना है तो वक्फ जायदाद के सिलसिले में हमारा मसला ये है कि आप जो है एक कमेटी बनाई जाए, एक कमेटी बनाई जाए, और वो कमेटी जो है वक्फ जायदाद के उमूर को देखते रहे और वो बाइख्तियार कमेटी हो। और उसके बाद हमारा मुतालबा है आइम्मा मौज़नीन के हदिये को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के मुताबिक ही जो है आप उसको जारी करें। शहर हैदराबाद में कम से कम 3000 से 5000
बेवाओं को वजीफा जारी करे, खुली अराजी को कंपाउंड वाल से घेरा जाए ताकि कब्जा ना हो। हमारा एहसास ये है कि जो है कि ये मुतालबे इनके लिए बहुत गिरा गुजरते हैं। वक्फ जायदादों के किराए में इजाफा करे और मामूली रकम के तरीक़ेकार को ख़त्म करे। हमारा मुतालबा है कि मुस्लिम जमातों और सियासी जमातों के कायदीन के साथ एक अखलाकी मीटिंग करे और जिनसे ख्वाहिश करे कि किराए के इजाफे में वो ताउन अमल करे, ताकि नए पुल से चार मीनार की हद तक जो जायदादें हैं, अगर उसका किराया ही जो इजाफा हो जाए तो करोड़ों रुपए का जो है वक्फ बोर्ड को फायदा होता है। लेकिन हमारा वक्फ बोर्ड जो है ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए हमने हमारे रिप्रेजेंटेशन में एक बात का इजहार किया है कि हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी सियासी जमात है, आप हमारे साथ जॉइंट मीटिंग कीजिए, हमारी जमात के नुमाइंदे और वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स उसमें शामिल रहें। 15 दिन में आप जॉइंट कमेटी का ऐलान करें। अगर आप 15 दिन में ऐलान नहीं करते हैं तो हम जो है जमहूरी अंदाज से जो है वहाँ डिमांस्ट्रेशन करेंगे, हम धरना देंगे, हम जो है घेराव करेंगे, और इस मसाइल को हल होने तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। इसलिए ये जायदाद अगर सही तरीके से इस्तेमाल में आ जाए और जिसकी आमदनी अगर जो है सलीके से वसूल की जाए तो हमारी हैदराबाद की गुर्बत ख़त्म होती है। गरीबों के लिए दवाखाने का इंतज़ाम किया जा सकता है, गरीब यतीमों के लिए मदरसे का इंतज़ाम किया जा सकता है, गरीब यतीमों के लिए तदफीन का इंतज़ाम किया जा सकता है, गरीब यतीमों के लिए अगर हम जो है वक्फ जायदाद पर को डेवलप करते हुए कोई ऐसे मकानात छोटे बनाए तो जो है उस पर भी जो है आप गरीबों को रख सकते हैं, जहाँ पर आप जो है वो किराया। हम ये कह रहे हैं कि मंशा वक्फ को आप पेश नज़र रखें। आप जो है मंशा वक्फ को पेश नज़र नहीं रख के गवर्नमेंट को 200 एकड़ रेसिडेंशियल स्कूल के लिए आप जमीन देना चाहते हैं। आप क्यों देते हैं? आप ये कह रहे हैं हम हिफाजत नहीं कर सकते, तो आप अपॉइंटमेंट कीजिए, आप नाअहल हैं। आप जो सीएम के पास जाके बार बार सलाम करते हैं, सीएम से जाके ये कहिए कि साहब आप हमारे लिए बहुत अहम काम है, ये कर दीजिए। 3 साल से वक्फ का रिकॉर्ड रूम बंद है, कैसी अहम तरीन फाइलें गायब हो गई है उसका अंदाजा नहीं है। एक साजिश के तहत किया गया, कोई रेजोल्यूशन कमेटी ने पास नहीं किया, ना चेयरमैन ने मुतालबा किया, ना अराकीन ने मुतालबा किया, ना हमारा एमपी ने मुतालबा किया, ना हमारा एमएलए मुतालबा किया कि ये वो जो है छोड़े। और अब हम गौर कर रहे हैं, हम जो है हाई कोर्ट में रुजू होने वाले हैं और इसको जो है हम खुलाना चाहते हैं। हम आवाम से दुआ करते हैं कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह हमको ताकत अता फरमाए, अल्लाह हमें जो है इस इआनत करने की तौफीक अता फरमाए, और हमको ये बताया जाए कि आपकी दुआएं हमारे लिए कारगर हो सकती है। हम अपने मफादात से बालातर होकर सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की अजमत की बरकरारी और उसके फजल के तालिब है। हम अल्लाह से दुआ यही करते हैं, अल्लाह हमको कामयाबी